Raju, please mute yourself. Okay. So the first, the fourth practical we'll be doing today is the PDF submission. Right? Is anyone aware of it? How we can do it or what is it? Anyone? Okay. So wait a second, I'll just share my screen. Yes, my screen visible to you? Yeah, ma'am. Okay. Yes. So what is the benefit of PDF submission? I'll just give a brief about PDF submission. Okay. It's an SEO off-page activity, right? मैम मैं जस्ट एक सवाल पूछना चाहता हाँ जी, हाँ जी, पूछो। हूँ। ब्लॉग पोस्टिंग जो होते हैं ना वहाँ पे हमें जो ब्लॉग लिखते हैं तो हर एक पोस्ट में क्या अलग अलग ब्लॉग लिखना है या सेम ब्लॉग को हम 2-3 दिन तक यूज कर सकते किस पे? ऑफ पेज एक्टिविटी करते टाइम हैं? जी। वहां पे मिनिमम अगर आपके पास में सेम ब्लॉग ज्यादा यूज मत करो। इट इज लाइक रिकमेंडेड टू यूज ओनली 1 or 2 वेबसाइट। हर एक वेबसाइट के लिए आप थोड़ा सा डिफरेंट करो। मिनिमम 2 to 3 वेबसाइट्स पे आप कॉन्टिन्यूसली जो सेम ब्लॉग है वो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा चेंज कर दो कंटेंट को। ओके। जो अगर आप अपनी वेबसाइट पे डालोगे तो वहां पे सेम कंटेंट नहीं जाएगा, वहां पे हर बार ही डिफरेंट कंटेंट जाएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, वेबसाइट पे सेम कंटेंट नहीं जाएगा। बाकी जब आप एक्टिविटीज कर रहे हो ऑफ पेज एक्टिविटीज, वहां पे आप डिफरेंट वेबसाइट 2-3 वेबसाइट पे सेम ब्लॉग आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। ठीक ठीक है। ठीक। ओके। सो पीडीएफ सबमिशन इज एन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक वेयर वी अपलोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स लाइक ब्रोशर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स वगैरह हम राइट करते हैं उस पे, कुछ इन्फोग्राफिक्स हमने क्रिएट करके उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल में, जो पीडीएफ सबमिशन की वेबसाइट्स होती है वहां पर जाके हम मेनली शेयर करते हैं। मेन हमारा क्या होता है कि हमें बैकलिंक्स जनरेट करना और जो हमारी विजिबिलिटी है एज ब्रांड अवेयरनेस उसको इंक्रीज करना। ठीक है। द मेन बेनिफिट्स ऑफ पीडीएफ सबमिशन इन एसईओ लाइक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, पीडीएफ शेयरिंग साइट्स ऑफन लाइक जो हमारे जितने भी पीडीएफ सबमिशन हो गए या जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनकी जो डोमेन अथॉरिटी है, सो domain authority of that particular website, it has a like higher value on Google. So whenever we submit our content in those of the website, so what Google will do, Google will improve our online visibility and we'll get a particular backlink from those websites. It also increased visibility like our PDF submission can rank in Google search results. It also attract more organic traffic, right? It also helps in keyword optimization because we are targeting our focus keyword or main keywords which we are using in our website or other submissions. So it will help us in that too. Okay. It also helps in increasing our brand awareness because we are using our brand name to particularly doing any of the activities, right? So for doing PDF submission, like whenever we do the practical of any of it, like हम like we do social bookmarking, ऑफ पेज एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, ब्लॉग सबमिशन हो गया, तो whenever we do any of the submission we go to the Google and search for that particular term of the websites. Like if I'm searching for the PDF submission website, okay, I'll just go to the Google and search this particular term. Sorry. Then you can choose any of these website. Like here you can see 350 plus free PDF submissions site list. Once you go to these of the website, you will get to know like, wait a second.
So you have to choose PDF submission website from these of the websites list. Let's suppose I went to this 50 plus high DA PPT document or PDF submission sites list. Okay. Then just scroll it down. Okay. So here you can see the top 10 PDF submission sites list, which has high DA 94, 93, 92, 92, 90, 89, and these. Let's suppose I went to this website and one by one I opened each of the website for my submissions. Okay. You can go to the other websites too. Just scroll down. You will see the websites here. Slide serve we can also use. So here is like list of PPT or doc submissions. If you want to submit the PPT presentation, like you have these particular website where you can submit your PPT, right? This is all the also the PPT submissions. So these are all like category wise, which are the PDF submission and the PPT submissions. So you can choose from these of the website. Okay. Let's go with one by one. Hmm. This is the first website we have also used for the profile creation. If anyone remember that, right? I already have an account over here. So everyone did the profile creation in this website. Simply what we have to do is we have to just log into that particular account and go to the upload files. Right. Before that, what we have to do is we have to create a particular PDF. For PDF creation, what we will do, we'll open a doc file from here, docs. Here is the docs. Just create a blank page. Okay. Then open a chat GPT for your content creation. Hmm. For that, you will need a particular keyword, right? Let's suppose I took two keywords from my home page. Okay. And I will give a prompt here. Write a PDF content in 1500 to 1600 words, right? Because PDF needs like a lot more words into that. So write a PDF content in 15 to 1600 words. I just copy paste the homepage keywords and the website also. Okay. After that, I can add my other services. Let's suppose I want to go for the digital marketing. Okay. I'll just choose two keywords from digital marketing course, and I can also add the particular URL for that. Okay. And let's suppose we also go for the AI, artificial intelligence course. Okay. Let's suppose this one and I can also take the data analytics keywords too. Okay. Took only 3 to 4 particular courses or the service names you can took. Okay. So out of these, what ChatGPT will do, they will give you the content from these of the keywords, and also just give a prompt to that use keywords only once. Hmm. What ChatGPT do, like it use that particular keyword in like 3 to 4 times. So we just want to use only once. Okay, which is given this. Let's see. Okay.
Sorry. See, it has given the content. Just copy the content from ChatGPT. Before pasting content, what we'll do is we'll add the header. How we can add the header? Just double click onto this or just go to the format option or the insert. Oh, wait a second. You can double click it on or you'll be able to add the header. There is also the option of for that, but you'll have to find it, right? After like came this, you can just go to the insert option and you will use your logo or brand logo for header. Hmm. Okay, choose it from your logos. Just choose the image like this. I'll also add the this image in your file. Okay, according to that, just adjust it how you want it. Adjustments. Okay. Just choose according to it because यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है. Log aspects or I need it to be in the middle. Right. Okay, let's see. Okay, so अब इसको थोड़ा सा और एडिट कर लो, थोड़ा सा और छोटा कर दो. Then we'll just paste the content. So once you will add the header, like how many pages it's there, and like 6 to 7 pages are there. So once you add the header, the page will automatically add it over there. You don't need to add a single header in a single sheet or a single page, right? So just remove the unnecessary things from your content and let's make it like the normal text. Okay, whatever the text needs to be bold or highlighted, we'll do it manually. Okay, let's suppose introduction part we don't need it. For this title, it's actually a title, so I'll just make it a title from the this one styles. Okay, then here you can see the prayug.com. It's written like the website only, but we don't need it. We need to be highlighted in our keyword, which is the online training platforms. So this is the particular keyword of my homepage. I'll just hyperlink this with my domain. Wait a second. Okay. Sorry, actually, I'm not feeling well today. So I'll just cover it how, like, how many topics I can cover it today. Okay.
So once you highlighted particular keyword with your home page, then remove other unnecessary things from it. This is also needs to be in the bold, just bold it. Then remove the other things also. Second thing, second point should be also in the bold. And here is a gap. Here you can just also remove that. Okay. And just remove this lines also. Okay. Just a little bit more. Then the conclusion. Okay. Yeah. We got all of it. It's okay. Explore more at like drive.com. We have added here. Then let's move to the other keywords which we have used for individual, like digital marketing or data analytics. We'll just look for that. The rise of online trainings. It's the first one. So here is the second keyword which we have mentioned. So what ChatGPT already did, it already hyperlink the particular course link with my keyword, digital marketing course, then data analytics course, Noida, and also the AI course in Gurgaon. So it hyperlinked by it. So it's done. Like, so your document name, it will be the name of your title also. Okay. Just go to the file option and download a PDF. Download, just go to the PDF, download PDF, and your PDF is downloaded with the name, the title which we have given to the PDF. Okay. It's content creation. Okay. Let's go to the these of the website. Sorry. Just go to the upload section in Poreshare.com. We already created an account over there in our first class, which was the profile creation. I'll just upload this file. Connection problem. Wait. So one file uploaded. It will just show you the preview of that. So here you can see best training platform we have uploaded here. You can just click onto this eye icon or click onto the share option too. From here, you can just copy the sharing link and check it in incognito mode to check if your PDF submission is like correctly done or not. Here you can see the PDF which you have uploaded, right? If you want to download it, you can download it. Hmm. So this is the first website where we don't need to
add any of the details, we is also have some this information in the second or third class, that in this website you can do three activities, three or four activities at a time. You can also do the social bookmarking. You can also share the image or the poster, whatever you have created. Then is the PDF submission, and fourth one is the note. Note here is the option for the blog submission. Okay. So what we need to do is we have to submit the PDF. Let's go to the PDF again. So once it's uploaded, just add the tags. Tags, what you can add here is like we have the particular keyword which we used. Online courses, I can also add as my tags, and digital marketing course or data analytics course and any other course you can add. Let's suppose AI and ML I have also added. So these are all the tags which I have used as keywords, right? Just upload it and you will be able to see it here. Just go to the three dot option and get shareable link. So you can also check the preview of it. Here you can see our PDF. So how we get the referral traffic from these of the website, right? This is the like hyperlinked one. If anyone if anyone clicked onto this hyperlinked option, so they will directly go to my particular website or the hyperlinked URL which I have used in these of the keywords, right? It's not visible मैम here. Yes. मैम मैम, ये जो कीवर्ड आप बता रहे हैं जिस पे कोई क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे कैसे जाएगा इस पे? बिकॉज ये तो कीवर्ड कॉमन कीवर्ड है, वो तो कोई भी यूज कर सकता है, तो किसी पे भी जा सकता है ना? देखो कंटेंट हमने यहाँ पे क्या करा, अपनी वेबसाइट का यूज करा है, ठीक है। कीवर्ड जो है जो हमने अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करे हैं वो यूज करा है यहाँ पे। नहीं, कंटेंट किसी भी वेबसाइट, हमने अपनी वेबसाइट का यूज करने का क्या मतलब है इस पे? ये एक सेकेंड दोबारा रिपीट करना, सॉरी। जो आप बोल रहे हैं कि कंटेंट हमने अपनी वेबसाइट का यूज किया है, लाइक सपोज अगर मैं कोई कोर्स सेल कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो तो बहुत दुनिया सेल कर रही है, और ये तो बहुत कॉमन कीवर्ड है, ऑनलाइन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो ये तो कोई भी यूज करेगा, बहुत कॉमन कीवर्ड है, तो ये इसका हमारी वेबसाइट से ही लिंक कैसे हो रहा है? बिकॉज हमने अपनी वेबसाइट का हाइपरलिंक करा है ना यहाँ पे। कहाँ पे किया है हाइपरलिंक? अभी आप थे नहीं क्या वेबसाइट? क्लास में, लेट ज्वाइन करा है। नहीं नहीं, मैं क्लास में ही हूँ मैम, स्टार्टिंग से। बट अच्छा। जैसे मतलब आपके जो इसमें पीडीएफ में आ रहा है, लेकिन कई बार हम ब्लॉग क्रिएशन वगैरह करते हैं, हम्म। उनमें तो हमारी वेबसाइट का नाम कहीं नहीं आता है, सिर्फ ये कीवर्ड्स ही आते हैं, हाईलाइट करते हैं हम लोग। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ब्लॉग्स के अंदर हमें पहले अपना जो ब्रांड नेम है उसको हाईलाइट करना पड़ता है? ब्रांड नेम जैसे यहाँ पे प्राय होगा ना, ब्रांड नेम हाँ। पे मैं हाइपरलिंक नहीं कर सकती बिकॉज वो ऑलरेडी ब्रांड है, ठीक है। हम्म, ब्रांड नेम है। जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है। हम्म, जो मैंने अपने होम पेज पे इम्प्लीमेंट करा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा होम पेज का है, होम पेज प्रायुक.com, तो वो मैं यहाँ पे हाइपर लिंक करूंगी। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे प्रायुक.com शो कर रहा है। तो अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो मेरे वेबसाइट पे आएगा प्रायुक.com पे। ब्रांड नेम का समझ में आता है मैम, मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग का नहीं समझ में आता, वो कहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया है होम पेज पे? क्योंकि हम पोस्ट तो कर रहे हैं, हम्म। हम ब्लॉग भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी वेबसाइट से कैसे रिलेटेड है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। वेबसाइट से कैसे रिलेटेड, इट मीन्स कि
वो मतलब कीवर्ड आप उससे अपने। ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे क्यों आएगा? ऑनलाइन ट्रेनिंग तो भाई बहुत सारी दुनिया यूज कर रही है ना। कीवर्ड एक ही कॉमन ही कीवर्ड है भाई। ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग तो कॉमन कीवर्ड है, कोई भी यूज कर सकता है उठा के। से मान लो कोई, मैंने अबैकस क्लासेस देनी है, ऑनलाइन अबैकस क्लासेस एक बहुत कॉमन कीवर्ड है, वो हर हाँ कोई जी। यूज कर सकता है और लोग कर भी रहे हैं। तो उसमें फर्क क्या हुआ? हमारे पे ही क्यों लोग आएंगे उस कीवर्ड से? आपके ही वेबसाइट पे क्यों आएंगे उस कीवर्ड से? बिकॉज आपको ऑफ पेज करना पड़ेगा, एसईओ पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी सर्च करे ऑनलाइन अबेकस क्लासेस तो आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखे। तो फर्स्ट पे वही तो आएगा तो पूछ रही ऑब्वियस हूँ, सी बात बैक है। एंड वाला जो हमने नहीं सीखा ना, कि हम उससे हम अपनी वेबसाइट में क्या चेंजेस कर रहे हैं। हम ब्लॉग तो ठीक है पोस्ट कर रहे हैं, हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी वेबसाइट में कहाँ चेंज कर रहे हैं उस कीवर्ड से? वो तो कहीं नहीं आया ना हमारे पास, अभी तक डिस्कशन नहीं हुई उसको। वेबसाइट पे आप क्या करते हो जब आप ऑन पेज करते हो ना? ऑन पेज में क्या करते हैं हम? कीवर्ड्स वगैरह वो करते हैं, फाइंड करते हैं कीवर्ड्स, हम हम्म। निकालते हैं, ठीक है। हम्म। कीवर्ड्स निकालने के बाद जो भी हमारे सर्विस पेजेस है, हम उन सर्विस पेजेस के कंटेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो कीवर्ड, ठीक है। एक बार ये वेबसाइट आपकी अच्छे से बन गई, इम्प्लीमेंट आपने सारी कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर दी है, करने के बाद आपको क्या करना होता है? उसकी ऑफ पेज एक्टिविटीज करनी पड़ती है, ताकि जो आपने कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, हम्म। वो गूगल को भी पता चले कि ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड है इस वेबसाइट से भी रिलेटेड है। अच्छा, तो मतलब वो पहले जो कीवर्ड्स हम वहाँ यूज कर रहे हैं ब्लॉग्स में या इसमें पीडीएफ में, वो बॉक्स। पहले हमें अपनी वेबसाइट पे डालने पड़ेंगे? हाँ जी। जब तक आप वो कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक वो ऑफ पेज एक्टिविटीज करने का कोई फायदा ही नहीं है आपका। वही पूछना चाह रही थी मैम, ये तो आज ही पता चला ना। एक ठीक है। सेकेंड, सॉरी। सॉरी। हाँ जी। तो वही मेनली जब आपने क्लासेस ली होंगी, थियरी क्लासेस, तो मैम ने बताया होगा ना कि ऑन पेज में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। वो उसके तो बाद ठीक ही है, आप। लेकिन ये नहीं पता था ना कि इसका लिंक इसके साथ हो रहा है। मतलब हम सीख रहे हैं ये सब, लेकिन इसका लिंक बैकग्राउंड यहाँ से है। ये तो कल वैसे ही मुझे समझ में आया कि हाँ ये कीवर्ड तो भाई बहुत कॉमन है, ये तो कोई भी यूज कर रहा है और लोग कर रहे हैं, तो मेरे पे ही क्यों आएगा लोग? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और अभी मेरे हम्म। को समझ आया कि आपने बताया कि पहले हमें अपनी वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा, तब जाके उस पे करना पड़ेगा। हाँ जी। विदाउट अपनी वेबसाइट पे जैसे होता है ना, कि जैसे आपने कोई नई चीज सीखी, जब हम्म। तक आप वो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगी ना, तो ये चीज भी है वो अब चीज। जैसे मैम, अगर हम जैसे अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे वो डालते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। H1 टैग करो, ये करो, मेटा हम्म। ऑल्ट करो। तो हम ये सब बहुत चीजें समझ में नहीं आती कहाँ पर इसका मतलब, कहाँ पे क्या डालना है, इसका मतलब कहाँ पे क्या डालना है। मतलब मैं चैट जीपीटी से मैंने सर्च किया, मतलब ये हम्म। चीज कर लो एसईओ करने के लिए, बट वो करना कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली ना, कि वेबसाइट पे हम वो चीज कैसे, क्योंकि हमें वेबसाइट का तो कुछ सिखाया ही नहीं गया। वेबसाइट पे करना क्या क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो कुछ भी नहीं सिखाया गया। ना ही ऑन किसी ने पेज। बताया कि वर्डप्रेस पे क्या होता है। वेबसाइट हमें पहले दिन ही नहीं किसी ने कुछ सिखाया, और हमें सारा काम वेबसाइट से रिलेटेड बताया जा रहा है कि वेबसाइट से ये होता है, वेबसाइट से ये होता है, बट जो मेन टारगेट है जिस पे काम करना है वो हमें कहीं सिखाया ही नहीं किसी ने, कि वेबसाइट पे करना कैसे होता है। अब हमें कंटेंट एडिट करना है, वही नहीं हमें पता होगा कैसे एडिट करेंगे, तो हम करेंगे कैसे उसको? जी। मैं फर्स्ट वो डे से बोल रही हूँ ये बात, कि मुझे हमने ये समझा था कि हम वर्ड प्रेस पे या जो भी किसी भी चीज पे हम सीख रहे हैं, वो हम एक वेबसाइट बनाना अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ही वही होता है डिजिटल मार्केटिंग का, कि वेबसाइट बनाना, उस पे एसईओ करना, उसके उससे रिलेटेड वो करना। 40-50 क्लासेस का कोर्स हुआ है हमारा, लेकिन वेबसाइट बनानी किसी ने नहीं सिखाई, और बाकी सब कुछ सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि हमें वेबसाइट पे ही नहीं करना आ रहा, तो फिर हम करेंगे कैसे उस चीज को? लिंक ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो मेनली क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास खुद की वेबसाइट नहीं होती है। वो क्या करते हैं, अपने जॉब पर्पस के लिए करते हैं। तो जहाँ पे जॉब करने जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास में क्या होता है, वेबसाइट्स होती है, डेवलप्ड होती है ऑलरेडी। तो उन पे सिर्फ जाके उनको काम करना होता है मेनली। तो जिसका अब खुद का बिजनेस है, उनको क्या है, उनको सारी चीजें खुद ही से हैंडल करनी पड़ती है, जैसे आपका है, मैम ठीक बट है। ये थोड़ी ना होता वो है कि एक। वेबसाइट जिसकी बनी हुई है, तो डिजिटल मार्केटर क्या क्या रहा है? डिजिटल मार्केटर तो यही कर रहा है ना, एसईओ कर रहा है और ये सब कर रहा है, लिंक क्रिएशन कर रहा है। डिजिटल वेबसाइट तो हमारी भी बाहर से बनी हुई है, ये थोड़ी ना कि वेबसाइट हमने खुद बनाई है।
बट हम्म। काम उस पे करना तो आना चाहिए ना, मतलब वेबसाइट तो सिखाएगा ही कोई। ये थोड़ी ना है कि हमारा खुद का बिजनेस है या पर्सनल, आपका आप जॉब पर्पस के लिए भी जाओगे तो भी कोई हम्म। आपको बोलेगा भाई वेबसाइट में एसईओ कर दो, तो आपको एडिट ही नहीं करना आएगा, तो आप कैसे करोगे उस चीज को? ओके। एक बार ही ना आप क्या करना, बैठना और जो जो टॉपिक आप मतलब मैम ने नहीं करवाया है मेरे को एक बार ही बता देना, सो दैट मैं मैनेजमेंट से पूछ के फिर वो करवा सकूँ। क्योंकि मैंने मैम को भी लास्ट क्लास में भी कहा था कि मैम ये वेब प्रेस पे वेबसाइट का तो हमें समझा दो, यही तो मेन चीज है। वो वेबसाइट का वो कह रहे आगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में होगा। अब सब कुछ हो रहा है लेकिन वेबसाइट से ही लिंक, मैं कल वेबसाइट पे मैंने 4 घंटे लगा दिए, बट मुझे वेबसाइट पे एडिटिंग ही करनी नहीं आ रही कि कहाँ से एडिट एडिट करना है। अब कुछ और छेड़ दिया, कुछ पंगा हो गया, तो फिर वो पूरे हाँ, वो पूरी पूरे वेबसाइट खराब हो पेजेस जाएगी। खराब हो जाएंगे। वही तो फिर जो मेन पर्पस है वो सिखाया नहीं जा रहा, बाकी सब कुछ ओके इधर उधर ओके का ओके, सिखाया काम जा रहा डाउन है। काम डाउन। ये ठीक समझ है, नहीं आ रहा। मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार सर से पूछ के, तो जो आपका वर्डप्रेस का है स्टार्टिंग से आपको कैसे करना है वो सारा एक बार ही बता दो। ठीक है मैम, थैंक ठीक है, हाँ जी। ओके। और किसी को कोई डाउट है? यही डाउट थी जो अभी मैम ने बताया। बोला। हाँ, तो मेरे भी यही डाउट थी अभी। हाँ जी, मुझे आपका भी अपना खुद का बिजनेस है। ठीक है, एक बार मैं सर से पूछ के ना फिर वो टॉपिक एक बार कंटिन्यू करवा देती हूँ। वर्डप्रेस का। ठीक है, तब आज के लिए तो ये खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड वेबसाइट। सिर्फ आपको ये क्या करना है, जो लाइव लिंक है वो आपको अपनी शीट पर ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में और भी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये इशू करके वेबसाइट है, वो आप वहाँ पे देखोगे तो मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ कुछ वेबसाइट्स पे आपको क्या आएगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करने को आएंगी, जैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन। वेट, शट डाउन। ओके। ये वेबसाइट तो बंद हो गई है, पहले चल रही थी बट अभी इसने बंद कर दी है। ये आप स्लाइड्स ऑफ पे जा सकते हो, यहाँ पे आप अपना पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट करके, मे बी अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है मेरा, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अकाउंट। ठीक है, देन आप अकाउंट को एक बारी एडिट भी कर लेना। ठीक है, कि पर्टिकुलर अगर आप जीमेल से अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपने जीमेल पे नेम लिया होगा वही वहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो ये आपने ले लिया यहाँ से। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड का, सीधा जो आपकी पीडीएफ और पीपीटी फाइल है यहाँ से आप अपलोड कर दो। तो जो आपने टाइटल नेम यूज करा होगा ना यहाँ पे, वही टाइटल नेम यहाँ से ऑटो फेच कर लेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एरर भी आ सकता है। ठीक है, देन जो डिस्क्रिप्शन है आप वो जो कंटेंट आपने क्रिएट करा था वहां से एक दो लाइन आप स्टार्टिंग से ले सकते हो या कंक्लूजन से एक दो लाइन ले लो, देन यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, देन कैटेगरीज आपकी कौन सी है, जैसे मेरा एजुकेशन में है तो मैं यहाँ से एजुकेशन चूज करूंगी, एजुकेशन एंड द करियर। ठीक है, मेक श्योर कि जो आप पीडीएफ सबमिट कर रहे हो वो पब्लिक हो, प्राइवेट ना हो। और यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स लेने हैं वो आपके मैम, ये डिस्क्रिप्शन क्या हमें वो कंटेंट से ही लेना पड़ेगा, या मतलब डिस्क्रिप्शन हमें खुद अलग से बनाना पड़ेगा? खुद अलग से बना लो तो वो भी ठीक है, बट कंटेंट से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हर एक जो कीवर्ड है मेरा वो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने यहाँ पे अगर ऐड करूँ तो एंटर करने की, एंटर मत करना, सिर्फ कॉमा लगा दोगे तो आप सीधा वो एंटर हो जाएगा जो आपका कीवर्ड है। ठीक है, ये हो गए 3 से 4 कीवर्ड्स, मैंने यहाँ से टैग्स वगैरह उसको क्रिएट कर लिया। देन उसको पब्लिश कर दो। ठीक है, देन पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका कंटेंट। नहीं तो ये व्यू का ऑप्शन है, इस पे भी क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है।
तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, लाइव लिंक हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लाइव लिंक पे देख सकते हो, किसी किसी वेबसाइट में होता है कि जो आपने टाइटल यूज करा है वही टाइटल आपको यहाँ पे सर्च बार में भी शो हो जाता है। ठीक है, तो यही कंटेंट आप चेक कर सकते हो इनकॉग्निटिव मोड पे कि वो विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? मैम एक स्लग जो हम यूज करते हैं और जो परमालिंक यूज करते हैं वो किस लिए होता है बेसिकली? स्लग हम इसी को बोलते हैं, ऑटोमेटिक ले लेता है। सबमिशंस पे हम ऑटोमेटिक लेते हैं, जब हम वर्डप्रेस पे वो करते हैं तो वहाँ पे चेंज, वेबसाइट के लिए करोगे तो वहाँ पे अलग से आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। बट आप सबमिशंस वगैरह कर रहे हो, ऑफ पेज कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है क्रिएट करने का। जहाँ पे वो वाई ईस्ट ईस्ट कुछ होता है वहां से आता है। योस्ट एसईओ। ओके, एक सेकंड में शेयर करके बताती हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, बिकॉज आपने क्या करा होगा, वर्डप्रेस का जो पर्टिकुलर ऐप है उसमें से क्रिएट करा होगा वेबसाइट। ओके, तो ये मैंने वर्डप्रेस के थ्रू बनाया था। ये लोकल होस्ट में बनाया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अपने लैपटॉप से ज्वाइन करा है क्या हिमानी? मैं अभी तो मैं फोन से हूँ बट मैं ज्वाइन कर लूंगी फ्यू मिनट्स में। आप आगे करा दो मैम, लास्ट में ले लेंगे। वो हो गया है वैसे तो, बस एक बार ये देख लेता है। ओके, तो आप क्या बोल रहे थे? हम वो जो स्लंग होता है वो कहाँ ऐड करते हैं और परमालिंक कहाँ ऐड करते हैं? स्लग्स का देखो यहाँ पे सेटिंग्स में ना परमालिंक्स का ऑप्शन है यहाँ पे। तो वो आपको ना जनरली यहाँ पे ऑप्शन होता है, जब इधर नीचे आओगे ना आप, सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये परमालिंक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेटिंग्स पे जाओगे तो परमालिंक का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है प्लेन, आपको चाहिए कि जो आपका वर्डप्रेस है, ठीक है, उसमें कुछ आईपी एड्रेस होता है या कुछ नेम होता है, आईडी नंबर होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको शो करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कि आपको जो भी आप नया पोस्ट डालो या कुछ भी आप नया पेज क्रिएट करो तो उसका लिंक कैसे बन के आए। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट नेम का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे हर एक उसके बाद में डैश बन के आएगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है जब आप वर्डप्रेस पे आप अकाउंट क्रिएट करते हो। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। लेट्स सपोज इसको मैं अगर ये मंथ एंड नेम वाला कर दूँ, ठीक है, सपोज ये मैंने सेव चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो मैं जब आप अपना वेबसाइट ओपन करूंगी, लेट्स सपोज मुझे करना है अबाउट अस का पेज ओपन करना है, यहाँ पे जनरली दिख रहा है यहाँ पे वो दिख रहा है, बट यहाँ पे जो मैंने सेव चेंजेस करा वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है।
इट्स बिकॉज ऑफ द थीम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। तो आपको हमेशा जो भी है पोस्ट नेम पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका जितने भी आप पेजेस वगैरह बनाओगे, ब्लॉग्स वगैरह ऐड करोगे, तो वो आपका उसी नेम से आपको डैश जो एक यूजर फ्रेंडली और एसईओ फ्रेंडली स्लग होते हैं या यूआरएल्स होते हैं, वो आपको वैसे दिखेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई पोस्ट ऐड करूँ। ठीक है। भावना। यस। यस बोलो। नहीं मैम, कोई पता नहीं। ओके। लेट्स सपोज ये मेरे यहाँ पे ब्लॉग मैंने ऐड करा है। ठीक है। इसको H2 की जगह में क्या लिखना है? ठीक है। आप या आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने आप से। ठीक है। तो योस्ट एसईओ का मैंने एक प्लगइन बताया था। ठीक है। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो जब भी आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हो ना वर्डप्रेस पे, तो यहाँ पे आपके पास में पोस्ट का ऑप्शन आता है। उससे पहले योस्ट एसईओ या रैंक मैथ आपने जो भी यूज कर रहा होगा, टूल प्लगइन्स। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो ये जो एडिट स्निपेट है, इसको आप एडिट करोगे तो यहाँ से जो आपका टाइटल है और परमालिंक आप खुद ही जनरेट कर सकते हो। ठीक है। टाइटल के नेम पे आपको जनरली क्या देना है, टाइटल यहाँ पे ऐड करना है, बट मेक श्योर कि 60 कैरेक्टर्स के अंडर ही आपका टाइटल हो। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन और वो ऑप्शन शो करता है। ठीक है। यहाँ परमालिंक आपको क्रिएट करना है, आप सीधा चैट जीपीटी पे चले जाओ, किसी का भी आपको स्लग चाहिए या परमालिंक चाहिए, तो ये आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दो या क्रिएट अ स्लग काइंड ऑफ, तो यहाँ से क्रिएट करके दे देगा। तो आप यहाँ पे यूज़ वो कर सकते हो। ठीक है। सपोज ये मैंने यहाँ पे यूज़ करा। ओके। 75 के अंडर आना चाहिए। लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ से हटा दिया। डिस्क्रिप्शन, तो ये आपका कैसे शो होगा, जैसे अगर कोई भी गूगल पे सर्च करता है, जैसे ट्रैवल सर्विसेज अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे छोटा सा दिखता है। ठीक है। ये टाइटल और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिखता है, ये हम वो एडिट कर रहे हैं। ठीक है। ये आपका ओके। ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कुछ भी। ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, बट मेक श्योर कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो भी आप यहाँ पे यूज करो। ठीक है। जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मेरा अगर मान लो ट्रैवल बिजनेस है, ट्रैवल सर्विसेज है, ये मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड है। ठीक है। ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे टाइटल पे भी यूज करा एंड परमा लिंक पे भी यूज करा एंड द डिस्क्रिप्शन। तो इन सब चीजों में यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। ठीक है। ऐड कर लिया, एडिट कर लिया। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एसईओ पे आपका जो भी है यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है। एरर्स जो भी हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। फोकस कीवर्ड मेरा क्या है टाइटल पे, अगर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आएगा फोकस कीवर्ड, अगर मैं मान लो मेरा ये डालूं, मैं जो मेरा ब्रांड नेम है वो डालूं, बट ब्रांड नेम आपको फोकस कीवर्ड में कभी डालना नहीं है, अदर उसमें डालना है। ठीक है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा, ठीक है, यहाँ पे स्कोर कितना था, स्कोर मेरा था यहाँ पे 8, 8 से कितना हो गया, 62%, 66%। तो फोकस कीवर्ड आपको ऐड करना नेसेसरी है, ठीक है। एडिट स्निपेट्स भी कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे डाला था और जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है, रिव्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको पब्लिश करूंगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके रिफ्रेश करा और ब्लॉग्स में जाके मैंने यहाँ पे चेक करा, तो जो मैंने रीसेंट पोस्ट डाली है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे जो स्लग मैंने यहाँ पे यूज करा था, जो मैंने स्लग ऐड करा था, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। बट जब भी आपको क्रिएट करना है ब्लॉग के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए, वेबसाइट में भी होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट आपको सर्विसेज वो मिलते हैं। लेट्स सपोज ये जस्ट स्टाइल है, ठीक है, या इंडिया मार्ट किसी पे भी चले जाओ, लेट्स गो टू द जस्ट स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे गई मैं, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे इसकी वेबसाइट चेक करनी है, लेट्स गो टू द अदर वेबसाइट, वेट, जैसे स्काई विंग्स ट्रैवल एजेंट है, ठीक है, यहाँ पे इनका कॉर्पोरेट ट्रैवल है, ठीक है, उसके अंडर में इनकी सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है, और सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो वैसे भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसके आगे भी और कुछ ऐड कर सकते हैं, बट जितने भी हमारे जो यूआरएल्स होते हैं, स्लग्स होते हैं मेनली, उसको हम क्या करते हैं, एज इन कुछ भी ऐड करना है तो हम डैश ऐड करते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स हम ऐड नहीं करते, और कोई भी एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यूज नहीं करते हैं। तो ये आपका एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स में काउंट होता है, ठीक है। गूगल इजीली रीड कर सकता है इसको। हम फोकस कीवर्ड एक फोकस कीवर्ड एक ही यूज करना होता है या मल्टीपल यूज कर सकते हैं? आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल यूज करने का। फोकस कीवर्ड यहाँ पे एक ही डाला है मैंने, तो आप और भी डाल सकते हो, जैसे मुझे डालना है, लेट्स से, जैसे ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, बट यहाँ पे एरर दिखाया, रेड रेड दिखाएगा। तो मेनली फोकस आपका क्या होगा, फोकस एक ही कीवर्ड डालो, जैसे अबैकस क्लासेस है आपकी, तो वो आप फोकस कीवर्ड में यूज कर सकते हो। एक ही आ रहा था, बाकी एरर आ रहे थे, वही पूछ। हाँ, बाकी एरर आ रहे हैं, एक ही आप डालो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एडिशनल एरर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो, लिंक आउट एक्सटर्नल, कोई मैंने लिंक यहाँ पे नहीं लगाया है एक्सटर्नल लिंक, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। टाइटल रीडेबिलिटी फोकस कीवर्ड है यहाँ पे, बट कंटेन अ पावर वर्ड, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ये वर्डप्रेस वाला ना, एक बारी मैं सर से पूछ के ना ये आपका करवा दूंगी, ये हम 66 से 80 90% तक लेके जा सकते हैं, जो एरर्स हैं वो हम फिक्स कर दे तो चला जाएगा वो। मैम कोई पेज अगर हम हिडन पब्लिश नहीं कर रहे हैं तो क्या वो इफेक्ट करता है हमारी वेबसाइट पे या नहीं? नहीं, हमने वो बना हिडन नहीं दिया होगा पेज, ना, ड्राफ्ट पे ही होगा ना वो। हम मतलब बना दिया लेकिन पब्लिश नहीं किया, तो फिर वो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? हमने उसको कीवर्ड वगैरह सब किया हुआ है। जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करोगे पेज को, वो होगा ही नहीं, वहाँ पे विजिबल ही नहीं होगा आपके वेबसाइट पे, ड्राफ्ट नहीं पे हम ही रहेगा वो। जैसे हमने जैसे पुराने वाले टीचर ने हमें बताया था कि हम्म। कुछ पेजेस जो होते हैं वो हम लोग हिडन रखते हैं। मतलब जैसे अगर आप कुछ पब्लिक को शो नहीं करना चाहते हो तो आप हिडन रख सकते हो। जैसे कुछ लोग हिडन मतलब एसईओस करते हैं, मान लो बहुत सारे पेजेस बना देते हैं लेकिन वो पब्लिश नहीं करते हैं, तो क्या वो इफेक्टिव नहीं होते हैं? मतलब पिछली टीचर ने ऐसा कुछ बताया था बट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा, होना चाहिए या नहीं होता। हिडन वाला ना एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, बता देना। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में एक बार बता दूंगा, ठीक है। मैम मेरा एक बात था। हाँ जी। ये आप जो मुझे सबको होमवर्क वगैरह देते हैं ना, मुझे मिलता नहीं है वो। मतलब आप ग्रुप पे नहीं हो गया? पता नहीं ग्रुप कौन सी है वो, मुझे समझ में नहीं आ रही। ग्रुप नंबर आपका आई थिंक कितना है, वेट, ये डीएम प्रैक्टिकल बाय, नहीं है मेरे साथ उसमें। एक बार ये नंबर बताना अपना। हाँ, नंबर है 977
एक सेकेंड। 9774 5। 977 वाला है ही नहीं इस पे। 977 आपको 4। क्लासेस कहाँ से मिलती है? क्लासेस तो मैं ऑनलाइन से मिल जाती है। अच्छा। एक बारी बोलो नंबर। 977। 45 हम्म। 89 हम्म। 763। 763। एस पॉल। ठीक है, मैं एक बारी कोऑर्डिनेट से बोल के आपका नंबर ऐड करवा देती हूँ उसमें। ठीक है जी। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट है? और एक सब पूछना था, जैसे सपोज अगर जोमेटो हो गया, अगर सपोज हमें जोमेटो का करना पड़ रहा है या किसी इस टाइप से, जैसे जस्ट डायल हो गया, उस टाइप से कंपनी जो होती है, हम्म। इस टाइप की कंपनी में जो काफ़ी सारा वेंडर जुड़ते हैं, तो वेंडर अपने जब रजिस्ट्रेशन करते हैं अलग अलग फार्म के नाम से, तो जब जोमेटो वाला को क्या जब एसीओ करते हैं, तो उन सब का एसीओ वो खुद करना पड़ता है, या वो जो मर्चेंट जो ज्वाइन हो रहे हैं वो खुद अपना एसीओ करते हैं, मतलब? देख, एक सेकंड, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज जैसे जस्ट डायल हो गए, जस्ट डायल हाँ। में हमने ज्वाइन किया, हम्म। जस्ट सपोज मेरे अपने जो भी बिजनेस है मैं उसको जस्ट डायल में डाल दिया। हम्म। अब जस्ट डायल वाला को एसईओ जो हम मेरे जो कीवर्ड्स वगैरह जो भी है उसके एसईओ जस्ट डायल वाला करेंगे, या मैं मुझे करना पड़ेगा उस वहाँ पे? वहां पे तो आपने क्या करा, अपनी जो बिजनेस डिटेल्स है वहां पे वो ऐड करी है। ठीक है। जी तो जस्ट डायल के पास सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। जी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, उनके पास में। तो जी। वो तो नहीं करेंगे, वो करेंगे अपने वेबसाइट के लिए करेंगे। ठीक ओके है, एसईओ करेंगे तो। बाकी एसईओ करना होगा तो आपको अपने एंड से करना होगा। ओके। मैं असल से मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे एक जनवरी फरवरी में मेरे एक बिजनेस आ रही है। ओके। तो वहाँ पे मतलब एक मल्टी वेंडर्स हमारे यहाँ पे एंटर करेंगे मेरे ऐप में। ओके। तो मुझे उस सब के लिए मुझे खुद करना पड़ेगा, या वो भी खुद करेंगे, मतलब वो पूछना था, मतलब इसीलिए मैंने ये कहा। कोई नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देती हूँ, बिकॉज अभी एक नेक्स्ट क्लास है। कोई बात नहीं। ठीक है। ओके। ओके।